Online classes, class 10th, subject science, chapter 9, part 6, evolution by stages, विकास के चरण. A question that arises here is, if completed organs such as the eye are selected for the advantage they provide, how can they be generated by a single DNA change? Surely such complex organs will be created byte by byte over generation, but how can each intermediate changes be selected for? There are a number of possible explanations. Even an intermediate stage, figure 9.11, such as a rudimentary eye can be useful to some extent. That might be enough to give a fitness advantage. In fact, the eye, like the wings, seems to be a very popular adaptation. Insects have them, so does an octopus, and so do vertebrates, and the structure of the eye in each of these organisms is different enough for them to have separated evolutionary origin. यह प्रश्न उठता है कि यदि जटिल अंग, उदाहरण के लिए आँख का चयन उसकी उपयोगिता के आधार पर होता है, तो डीएनए के एक परिवर्तन द्वारा किस प्रकार का संभव है? निश्चित रूप से ऐसे जटिल अंगों का विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ होगा, परंतु बीच में परिवर्तन किस प्रकार चयनित होते हैं, इसके लिए अनेक संभावित स्पष्टीकरण हैं. एक बीच के कारण चरण, जैसे कि अल्पवधित आँख, किसी सीमा तक उपयोगी हो सकती है. यह योग्यता को लाभ के लिए पर्याप्त हो सकता है. वास्तव में पंख की तरह आँख की भी एक व्यापक अनुकूलन है. यह कीटों में पाई जाती है. उसी प्रकार ऑक्टोपस तथा कशेरुकों में भी, तथा आँख की संरचना इन सभी जीवों से भिन्न होती है, जिसका मुख्य कारण अलग अलग विकसी उत्पत्ति है. Also, a change that is useful for one property to start with can become useful later for create a different function. Feather, for example, can start out as providing insulations in cold weather, figure 9.12, but later they might become useful for flight. In fact, some dinosaurs had feathers, although they could not fly using the feathers. Birds seem to have later adapted the feather to flight. This of course means that birds are very closely related to reptiles, since dinosaurs are reptiles. अब एक परिवर्तन जो एक गुण के लिए उपयोगी है, कालांतर में किसी अन्य कारण के लिए भी उपयोगी हो सकता है. उदाहरण के लिए, जो संभवतः ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने वाले के लिए उपयोगी हो गए. वास्तव में कुछ उड़ने में समर्थ नहीं थे. बाद में संभवतः पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए अपनाया. डायनासोर सरीसृप थे, वह हम यह अर्थ निकाल सकते हैं कि पक्षी बहुत निकटतम से सरीसृप से संबंधित हैं. This is a small dinosaur from the Dinosaurus family. यह डायनासोर परिवार का सबसे छोटा डायनासोर है. Feather imprintings were preserved along this dinosaur's bones. Here we can see feathers on the forearm. डायनासोर की इन अस्थियों के साथ पैरों के छाप भी परिलक्षित हो जाते हैं. यह हम अग्रबाहु पर स्थित पैरों की छाप देख सकते हैं. It is all very well to say the very dissimilar looking structure evolved from a common central design. It is true that analysis of the origin structure in fossil allow us to make estimates of how far back evolutionary relationships go, but those are guesses about what happened in history. Are there any current example of such a process? The wild cabbage plant is a good example. Humans
have over more than 2000 years cultivated wild cabbage as a food plant and generated different vegetables from it by section. See figure 9.13. This is of course artificial selection rather than natural selection, so some farmers have wanted to select for very short distance between leaves and have bred the cabbage with it. Some have wanted to select for arrested flower development and have bred broccoli or for sterile flower and have made the cauliflower flavor. Some have selected for swollen parts and come up with kohlrabi. Some have similarly located for slightly larger leaves and come up with a leafy vegetables called kelly. Would we have thought that all the structure are descended from the some ancestor if we had not done it ourselves? अब ये रोचक होगा कि बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचनाएं एक समान परिकल्प से विकसित हो सकती हैं। यह सत्य जीवाश्म में अंगों की संरचना का विवेचना हमें यह अनुमान लगाने में सहायक हो सकती है कि विकासीय संबंध कितने पीछे जा सकता है। क्या इस प्रक्रम के उदाहरण उपलब्ध है? जंगली गोभी इसका एक अच्छा उदाहरण है, जो 2000 वर्ष पूर्व से मनुष्य जंगली गोभी का एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता है तथा उससे चयन द्वारा इससे विभिन्न सब्जियां विकसित की, परंतु यह प्राकृतिक वर्ण न होकर कृत्रिम चयन है। कुछ किसान इसकी पत्तियों के बीच की दूरी को कम करना चाहते थे, जिससे पत्ता गोभी का विकास हुआ जिसे हम खाते हैं। कुछ किसान पुष्पों की वृद्धि रोकना चाहते हैं, अतः ब्रोकली विकसित हुई, अतः बंद पुष्पों से फूलगोभी विकसित हुई। कुछ ने फूल हुए भाग का चयन किया, अतः गांठ गोभी विकसित हुई। कुछ न केवल चौड़ी पत्तियों को ही पसंद किया तथा केल नामक सब्जी का भी विकास किया गया। यदि मनुष्य ने स्वयं ऐसा नहीं किया होता तो क्या हम कभी ऐसा सोच सकते थे कि उपरोक्त सभी समान जनक से विकसित हुई हैं? अब इवोल्यूशन ऑफ वाइल्ड कैबेज, जंगली गोभी का विकास। कोलरबी, गांठ गोभी, वाइल्ड कैबेज, ये वाइल्ड कैबेज है जिससे जंगली गोभी कहते हैं। इससे कोलरबी, गांठ गोभी उत्पन्न हुई, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी हुई, ब्रोकली, कैबेज, रेड कैबेज, केल। मतलब एक वाइल्ड कैबेज, एक जंगली गोभी से 6 सब्जियां और उत्पन्न हुई। अनदर वे ऑफ ट्रैकिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन द original idea that we started with. That idea was that changes in DNA during reproduction are the basic events in evolution. If that is the case, then comparing the DNA of different species should give us a different estimate of how much the DNA has changed during the formation of this species. This method is now essentially used to define evolutionary relationship. विकासीय संबंध खोजने में एक अन्य तरीका उस मौलिक परिकल्पना पर निर्भर करता है जिससे हमें प्रारंभ किया था। यह विचार था कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास के आधारभूत घटना है। यदि यह सत्य है तो विभिन्न स्पीशीज के डीएनए की संरचना की तुलना से हम सीधे इसका निर्धारण कर सकते हैं कि इन स्पीशीज के उद्भव के दौरान डीएनए में क्या क्या और कितने परिवर्तन आए। विकासीय संबंध स्थापित करने में इस विधि का व्यापक स्तर पर प्रयोग हो रहा है। Evolution should not be equated with progress. विकास की
विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए। इन एन एक्सरसाइज ऑफ ट्रैकिंग द फैमिली ट्रीज ऑफ स्पीसीज वी नीड टू रिमेंबर certain things. Firstly, there are multiple branches possible at each and every stage of this process, so it is not as if one species is eliminated to give rise to a new one. A new species has emerged, but that does not necessarily means, like the beetle example we have been thinking about, that the old species will disappear. It will be depend on the environment. Also, it is not as if the newly generated species are in any way better than the older one. It is just that natural selection and genetic drift have together led to the formation of a population that cannot reproduce with the original one. So, for example, it is not true that human beings have evolved from chimpanzees. Rather, both human beings and chimpanzees have a common ancestor a long time ago. That common ancestor is likely to have been another human or chimpanzee. Also, the first step of separations from the ancestors is unlikely to have resulted in modern chimpanzees and human beings. Instead, the two resultant species have probably evolved in their own separated ways to give rise to the current forms. अब स्पीसीज के वंश वृक्ष की कड़ियाँ ढूंढने के इस प्रयास को हम कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहते हैं। पहले, इस प्रक्रम में प्रत्येक स्तर पर अनेक शाखाएं संभव हैं, अतः ऐसा नहीं है कि स्पीसीज के उद्भव के लिए पहले स्पीसीज विलुप्त हो जाए, एक नई स्पीसीज की उत्पत्ति हुई है। भृंग के उदाहरण में देखा है था, नई स्पीसीज की उत्पत्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पहले विलुप्त हो जाए, यह सब पर्यावरण पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह है कि विकसित हुई नई स्पीसीज अपने पूर्वज स्पीसीज से उत्तम ही हो, केवल प्राकृतिक वर्ण एवं अनुवांशिक विचलन के संयुक्त प्रभाव में ऐसी सम्मिश्र बनी, जिसके सदस्य पहले स्पीसीज के साथ जनन में असमर्थ हैं। अतः उदाहरण के लिए यह सत्य नहीं है। मानव में विकास चिंपांजी से हुआ है। वर्ण पहले मानव एवं चिंपांजी दोनों के के पूर्वज समान हैं। वे न चिंपांजी की तरह थे और न ही मानव की तरह। यह भी आवश्यक नहीं है कि पूर्वज से विलग होने के प्रथम चरण में ही आधुनिक चिंपांजी या मानव की उत्पत्ति हो गई हो, परंतु इस बात की संभावना अधिक है कि दोनों स्पीसीज का विकास अलग अलग ढंग से विभिन्न शाखाओं में अपने तरीके से हुआ होगा, जिससे आधुनिक स्पीसीज का वर्तमान स्वरूप बना है। In fact, there is no real progress in the idea of evolution. Evolution is simply the generation of diversity and the sapping of the diversity by environmental selection. The only progressive trend in evolution seems to be that more and more complex body design have emerged over time. However, again, it is not as if the older design are inefficient. So many of the older and simpler designs still survive. In fact, one of the simplest life from bacteria inhabit the most inhospitable rabbits like hot spring, deep sea thermal vents, and the ice in Antarctica. In other words, human beings are not the pinnacle of evolution, but simply add another species in the teeming spectrum of evolving life. वास्तव में जैव विकास के सिद्धांत का कई अर्थ कोई वास्तविक प्रगति नहीं है। विविधता में उत्पत्ति प्राकृतिक चयन द्वारा उस स्वरूप देना मात्र ही विकास है। जैव विकास की प्रगति की यदि कोई प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है तो वह है समय के साथ साथ शारीरिक अविकल्प की जटिलता में वृद्धि। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि पूर्व प्राचीन अविकल्प
अध्यक्ष है। अनेक अति प्राचीन एवं सरल अभिकल्प आज भी अस्तित्व में है। वास्तव में सरलतम अभिकल्प वाला एक समूह जीवाणु विषम पर्यावरण जैसे कि उस झरने गहरे समुद्र में गर्म स्रोत तथा अंटार्कटिका की बर्फ में पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में मानव जैव विकास की शिखर पर नहीं वरन जैव विकास श्रृंखला में उत्पन्न एक और स्पीसीज है। ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव विकास। द सेम टूल्स फॉर ट्रैकिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, exploiting time dating and studying fossil as well as determining DNA sequence have been used for study human evolution. There is a great diversity of human forms and feathers across the planet, so much so that for a long time people used to talk about human races. Skin colors used to be the components way of identifying these so-called races. Some were called yellow, some black, white or brown. A major question debated for a long time was have these appearance group evolved differently. Over recent years, the evidence has become very clear. The answer is that there is no biological basis to the notion of human races. All humans are a single species. मानव विकास का अध्ययन के लिए भी उन्हीं साधनों का उपयोग करते हैं जिनका जैव विकास के लिए किया जाता है तथा यथा उत्खनन, समय निर्धारण एवं जीवाश्म अध्ययन के साथ डीएनए अनुक्रम का निर्धारण मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन है। इस धरती ग्रह पर मानव के रंग, रूप एवं आकृति में अत्यधिक विविधताएं दृष्टिगोचर होती हैं। ये विविधताएं इतनी अधिक एवं प्रखर हैं कि लंबे समय तक लोग मनुष्य की प्रजातियों का ही बात करते हैं। आमतौर पर त्वचा का रंग इस प्रकार की प्रजाति का निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता था। कुछ को पीला, कुछ को काला, सफ़ेद या भूरा कहा जाता था। लंबे समय तक इसकी बहस चलती रही कि इन आभासी समूहों का विकास अलग अलग हुआ है। पिछले कुछ वर्षों का प्रभाव अति स्पष्ट हो गया है कि हम कह सकते हैं कि इन आभासी प्रजातियों का कोई जैविक आधार नहीं है। सभी मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं। नॉट ओनली दैट, regardless of where do have lived for the past few thousand years, we all comes from Africa. The earliest member of the human species, Homo sapiens, can be tracked there. Our genetic footprints can be tracked back to our African roots a couple of 100,000 years ago. Some of our ancestors left Africa while others stayed on while the residents spread across Africa. The migrants slowly spread across the planet from Africa to West Asia, then to Central Asia, Eurasia, South Asia, East Asia. They traveled down the island of Indonesia and the Philippines to Australia, and they crossed the land bridge to the Americas. They did not go in a single line, so they were not traveling for the sake of traveling obviously. They went forward and backwards with groups, sometimes separating from each other, sometimes coming back to mix with each other, even moving in and out of Africa like all other species on the planet. They had come into being as an accident of evolution and were trying to live their lives the best they could. केवल यही नहीं है कि हम पिछले कितने हजारों वर्ष तक कहाँ रहे,
बल्कि हम सभी का उद्भव अफ्रीका से हुआ। आधुनिक मानव स्पीसीज होमो सैपियंस के सर्वप्रथम प्राचीनतम सदस्यों को वहीं पर खोजा जा सकता था। हमारी आनुवंशिक छाप सर्वप्रथम हमारी जो आनुवंशिक छाप को कालगर्त में अफ्रीका मूल में ही खोजा जा सकता था। कुछ हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका छोड़ दिया, जबकि वह कुछ वहीं रह गए, जबकि वहाँ के मूल निवासी पूरे अफ्रीका में फैल गए। उत्प्रवासी धीरे धीरे समूचे ग्रह संसार पे फैल गए। अफ्रीका से पश्चिम एशिया तथा वहाँ से मध्य एशिया, यूरेशिया, दक्षिण एशिया तथा पूर्व एशिया, वहाँ से भी उन्होंने इंडोनेशिया के द्वीपों तथा फिलीपींस से ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र तय किया। वे बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके अमेरिका पहुँचे, क्योंकि वह मात्र यात्रा के उद्देश्य से सफ़र नहीं कर रहे थे, अतः उन्होंने एक ही मार्ग का चुनाव नहीं किया। वह विभिन्न समूहों में कभी आगे तथा कभी पीछे गए। समूह कई बार परस्पर विलग हो गए, अलग अलग हो गए, कभी कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं पर आगे बढ़ गए, जबकि कुछ वापस आकर परस्पर मिल गए। जाने आने का यह सिलसिला चलता रहा। इस ग्रह की अन्य स्पीसीज की तरह ही उनकी उत्पत्ति जैव विकास की यह घटना मात्र ही थी तथा वह स्पीसीज जीवन सर्वोत्तम तरीके से जीने का प्रयास कर रहे थे। थैंक यू।